Good morning, students. I hope so. You all are good. Okay, in last class, we start the chapter metals and non-metals. Firstly, in this chapter, we study about the physical properties of metals and physical property of non-metals. In last class, we start chemical properties of metals, and we done two properties about two or three properties. Firstly, reaction of metals with oxygen. There's a reaction of metals with oxygen, meaning metals react with the oxygen to form metal oxides. Okay, रजे like copper plus oxygen, copper oxide. Okay, next we can say metals react with metals react with the water. How metals react with water, or you can say reaction of metals with the water. So firstly, metals react with the water to form metal oxides or metal hydroxides and hydrogen gas. Meaning of the metals, whenever metals react with water, they form either metal oxides, either metal hydroxides with byproduct hydrogen gas. Okay, so for example, this is sodium. The reaction of the sodium with the reaction of sodium with water, it makes sodium hydroxide NaOH plus hydrogen gas, meaning this is the all metals react with the water. And what are the products and byproduct of the reaction of metals with the water? There are some special cases that we studied in the last class. Which metal react with the hot water and which metal react with the steam. This is all about the other special detail that we already covered in the last class. And the next is reaction with the acids. Reaction with the acids, meaning metals react with only dilute acids to form salt and hydrogen. Like magnesium plus hydrochloric acid, what forms salt, meaning magnesium chloride, and one is hydrogen gas. Hydrogen gas from the hydrochloric acid, and chlorine combines with the metal to form salt. This is all about the reaction of metals with the acids. Okay, now today we are going to start the reaction of metals with metal salt solution. किसके साथ रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट सोल्यूशन कहते हैं मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट मीनिंग किसी चीज़ की प्लेस किसी चीज़ की जो प्लेस है उसे क्या है डिस कर देना उसे क्या है चेंज कर देना कोई और चीज़ उसकी प्लेस ले लेती है डेट इज़ डिस्प्लेसमेंट ओके तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है वन मोर रिएक्टिव मेटल displace a less reactive metal from its salt solution. For example, this is magnesium and copper sulfate. Copper sulfate meaning salt solution of the copper. Okay, then magnesium takes place of copper, that is magnesium. हमारे पास क्या बन जाएगा magnesium sulfate and plus copper, meaning copper is displaced by the magnesium. Why? Because magnesium is more reactive than copper. So this is all about the displacement reaction, meaning one reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. This is the salt solution of copper sulfate, meaning copper. Then magnesium displaces the copper, it forms magnesium sulfate plus one copper metal. Okay, Razi. So this is all about zinc. Okay, zinc plus copper sulfate. Zinc displaces the copper from its salt solution, meaning forms zinc sulfate plus copper. Okay, Razi. Next is iron. Iron displaces the copper from its salt solution, forms iron sulfate plus copper. The rusting of iron is one of the example how we can perform the rusting experiment under the laboratory conditions. So firstly we took copper sulfate solution, and after that you can say put some iron, or you can say one nail in the solution. After 20 or 15 minutes you observe the color of copper sulfate solution changes from blue to green, or you can say light green. Okay, and the brown layer deposits, meaning copper metal deposits on the iron. Okay, this is all about meaning copper from the solution that deposits on the nail, and the iron reacts with the sulfur solution to form iron sulfate solution, that is light green in color. Okay, firstly that was in blue color. So this is all about how displacement reaction takes place, meaning firstly reactants of the reaction,
ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या होगी, आफ्टर द रिएक्शन दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन मीनिंग द ग्रीन कलर। So you can observe how more reactive metal that is iron changes the or displays the less reactive metal that is copper from its salt solution, and the color change also takes place. You can easily observe the reaction. Okay Razi, and the reactivity series of metals. Now reactivity series meaning the rearranging of the arranging of the metals in its in the decreasing order of their reactivity. जैसे reactivity series क्या है, एक पूरे का पूरा सीक्वेंस बना है जिसमें मेटल्स को क्या अरेंज किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है, किस बेस पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैथ्स में करते हो ना डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीनिंग सबसे मोस्ट रिएक्टिव पहले, फिर उससे कम मीनिंग ऐसे नीचे को डिक्रीज करता जाएगा। तो मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास क्या आ रही है, पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, के। द नेक्स्ट इज सोडियम, Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, silver, gold. Okay, so Raja, gold is the least reactive metal. Gold is the least reactive metal, and the most reactive metal is potassium, also sodium, calcium. These all are the most reactive metals. So you can easily learn this reactivity series. It will be helpful to writing chemical equations, because you can easily tell which metal can displace the other metal, because one reactive metal displace the non-reactive, or you can say less reactive metal. Okay Rajesh? So this reactivity series is very important. You have to learn the sequence of the reactivity of metals. Sometimes question may be based upon the reactivity series of the metals. You have to firstly check which metal is more reactive than other metal. And the next, how do metals and non-metal react? How do metals and non-metal react? Okay, metals lose electrons and become positive ions, so they are called electropositive elements. Whenever metals react, they lose electron. Does it lose meaning donate कर देंगे, because metals have excess electrons after filling the last octet or after filling the last outermost cell. They have some extra electrons that they lose, or you can say that electrons they donate. Okay, so they are called electropositive elements. Why electropositive elements? Because metals can donate. कोई किसी चीज़ को क्या है, डोनेट कर रहा है। रजे कोई किसी चीज़ को डोनेट कर रहा है, मीनिंग क्या है कि उसके पास वो एक्सेस में है। कोई किसी को तभी डोनेट करता है ना जब कोई चीज़ एक्सेस में होती है। सो मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन जो उनका सेल पूरा करने के लिए, जो उनके लिए क्या है न्यूट्रल होने की ये जगह होती है। रजे एक 9th क्लास में हमने चैप्टर किया था, डेट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें हमने क्या किया था, सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होती है हमारे पास, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अराउंड क्या है, सेल्स होते हैं ना, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। हमने एक मेथड किया हुआ था 2n स्क्वायर वाला, मीनिंग फर्स्ट सेल में कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 आते हैं, 8 16। सो क्या है जे एक पूरे का पूरा मतलब फिलिंग का रूल होता है जो हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। तो रजे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेटल के लास्ट जो हमारा आउटरमोस्ट सेल है वो फिल होने के बाद नेक्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल ट्राइज टू डोनेट और यू कैन से लूज डैट इलेक्ट्रॉन। मीनिंग जब वो किसी चीज़ को डोनेट और लूज़ करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, जैसे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आयन। इट बिकम्स पॉजिटिव आयन, और यू कैन से इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे गेन्स पॉजिटिव चार्ज। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। द अटोमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज़ 11। सोडियम का अटोमिक नंबर हमारे पास कितना है, 11। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 281, मीनिंग फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में हमने कितने किए थे 8, लेकिन जैसे थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। अगर से इलेक्ट्रॉन ना होता तो इट बिकम्स न्यूट्रल। ओके, तो मीनिंग किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। सो इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वी कॉल इट वैलेंसी, और यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ सोडियम आयन। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या है लूज़ कर दिया, मीनिंग किसी और को डोनेट कर दिया, तो क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव। पॉजिटिव मीनिंग आयन, रजे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्डिंग मीनिंग आयन, वी कॉल दैम आयन। सो इट बिकम सोडियम आयन। सेम एज मैग्नीशियम क्या है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। लास्ट सेल देखिए 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, सो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव मीनिंग मैग्नीशियम आयन। ओके रजे इन केस ऑफ नॉन मेटल्स,
देखो रजे वो क्या कर रहे हैं, जो मेटल्स थे दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आइंस, बट नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आइंस। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे एंड अपने ऊपर कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। ये क्या थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और दिस इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है राजे, सॉरी हमारे पास 17 नंबर होता है, 287 कितनी होती है, 287, मीनिंग लास्ट वाले सेल में अगर 1 और इलेक्ट्रॉन होता तो जो कितने हो जाते, 288, मीनिंग वैलेंसी उसकी पूरी हो जाती है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्लोरीन क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। कहाँ से गेन करेगी, जो इसे कोई डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे ही जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 नेगेटिव चार्ज, मीनिंग इसने किसी से 1 लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, कोई लेने वाला, मीनिंग उसके पास कम था, कितने कम थे, 1 कम थे, उसने वो 1 लिया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोराइड आइन। ओके राजे, क्या बन जाएगा, क्लोराइड आइन। सो हाउ दिस इज हाउ मेटल्स रिएक्ट और हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ओके राजे, देर आर सम एग्जांपल्स की हो आइंस फॉर्म, ठीक है, आइंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अभी हमने क्या डिस्कस किया था राजे, Na हमारे पास, Na के पास Na क्या है, सोडियम क्या है, मेटल है, एंड क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। तो सोडियम एज 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन डैट सोडियम डोनेट्स, ओके, एंड बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। और इसके पास क्लोरीन के पास क्या था, क्लोरीन हैज़ 1 लेस इलेक्ट्रॉन, सो सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म NaCl और यू कैन से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मीनिंग पॉजिटिव वाले ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, Cl नेगेटिव वाले ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, डैट इज NaCl, ठीक है रजे। कहते हैं द अटोमिक नंबर ऑफ द Na इज 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया टू फॉर्म Na पॉजिटिव आइन, क्या फॉर्म करने के लिए, Na पॉजिटिव। द अटोमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन इज 17, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जैसे 287, इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से गेन किया, फ्रॉम द सोडियम। ओके रजे, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव, मीनिंग क्लोराइड आइन। ओके रजे, क्या बोलेंगे, क्लोराइड। और द कंबाइंड मॉलिक्यूल डैट फॉर्म्स NaCl, ठीक है, मीनिंग सोडियम क्लोराइड। हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया रजे, सोडियम क्लोराइड। उसके पास एक एक्स्ट्रा था, उसके पास क्या है, उसे ज़रूरत थी तो सोडियम ने उसे डोनेट कर दिया। हमारी क्लास में भी तो ऐसे होता है ना, इफ़ योर फ्रेंड्स नीड, इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा पेन एंड योर फ्रेंड नीड्स दैट पेन, यू गिव टू योर फ्रेंड, ओके, डैट इज मीनिंग हम जो चीज़ हम उसके पास एक्स्ट्रा थी, उसको ज़रूरत थी तो नीडी पीपल को हम देते हैं, किसी नीडी पीपल को हम बुक्स दे देते हैं, क्लोथ दे देते हैं ना, तो डैट इज़ ऑल अबाउट कि किसी के पास एक्स्ट्रा होता है तो जिसको नीड होती है हम उसे दे सकते हैं। राधे सेम ही MgCl2 का केस है। Mg मीनिंग मैग्नीशियम के पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 12 2 8 2, मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, मैग्नीशियम आइन, डेट इज Mg2 पॉजिटिव। ओके, क्लोरीन के पास क्या होते हैं रजे, 287, लेकिन क्लोरीन को एक चाहिए, राइट, और क्लोराइड एन बन जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक क्लोरीन आ गई, दूसरी उसकी सिस्टर भी क्लोरीन आ गई, मीनिंग 2 क्लोरीन आ जाएंगे, 1 इस क्लोरीन को चला जाएगा, 1 इस क्लोरीन को चला जाएगा, क्या बन जाएगा, MgCl2। जिसके 2 थे उसके नीचे हमने क्या लगा दिया, 2, Mg मैग्नीशियम 1 था, क्लोरीन के 2 एटम थे तो हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन 2। ओके राजे, सो कहते द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज़ 12, ठीक है, मीनिंग द इलेक्ट्रॉनिक नंबर अटोमिक नंबर ऑफ द मैग्नीशियम इज़ 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 282, मीनिंग इट हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, लूज़ कर दिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाने के लिए। द अटोमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 17 एंड इट हैज़ 287 इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मीनिंग 7 वैलेंस सेल्स and need of 1 electron, so they gain, so it gain 1 electron to form chloride ion. So the magnesium 2 positive makes bond with the 2 chlorine atoms, ठीक है, and form magnesium chloride meaning MgCl2। अगर आपने नीचे Cl2 नहीं लिखा रहे then that's wrong. So this is the way how you can make the compounds or how the salts can be made. Okay Rajesh, so this is all about the formation of sodium and magnesium chloride. After that we will study it in detail, ठीक है, in next class. Today it's all about the chemical properties of metals and some compounds formed by the bonding between the metals, how metals and non-metals you can say react, ठीक है रजे। Okay, so this is all about the today's class, hope so you all understand it, thank you.